Good morning, all. Today we are going to start the next continued title for the Unit 1 in the Marketing Management 1. In the last session, we discussed the marketing process and we have gone through the different steps in brief. So, today we will be discussing the first step of marketing process, that is understand the marketplace and customer needs and wants. So here the first step, marketplace and customer needs. This is within which they operate. We will now examine the 5 core customer and marketplace concepts, because every human being will have different needs. Someone will need a bicycle, someone will need a car, someone will need clothes, right? So in the first step of marketing process, here we are discussing the 5 core customer and marketplace concepts. First is needs, wants, and demand. Second is market offerings, which includes products, services, and experiences. Third one is value and satisfaction. Fourth is exchange and relationships. And lastly, the fifth core customer concept and marketplace concept is markets. One by one, in detail, we will discuss what these all aspects are about and what are the definitions of these concepts. The first, which is very much basic, is needs, wants, and demands. As we discussed earlier, that marketing management is to satisfy customers' needs and wants. So, what is need? What is want? Here we have taken the first definition, needs, that is the states of felt deprivation. It includes basic physical needs for food, clothing, warmth, and safety. So this is very basic physical need. Roti, kapda, makan, you can say, right? Then social needs for belonging and affections. And lastly, the individual needs for knowledge and self-expression. So these are our basic needs, which which we are going through the daily process, right? So as I told you, these needs were not created by the marketers. Here मैंने जो बोला फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड्स, ये 3 जो नीड्स है वो मार्केटर ने क्रिएट नहीं किया है. दे आर नॉट क्रिएटेड बाय द मार्केटर. दे आर अ बेसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन मेकअप, राइट? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ दीज 3 नीड्स एट लीस्ट, राइट? खाने के बगैर किसी को चलता नहीं है, कपड़ा के बगैर किसी को चलता है. एवरीबडी नीड्स द हाउस, हाउस के बिना किसी को चलता नहीं है. इंडिविजुअल नीड्स होती है सभी का, बिलोंगिंग अफेक्शन होता है कि फैमिली फ्रेंड्स होना चाहिए, राइट? नॉलेज, सेल्फ एक्सप्रेशन हर एक इंसान को होता है. सो दीज आर द नीड्स. बट एज अ मार्केटर, इफ वी थिंक अबाउट द नीड्स, देयर इज अ क्वेश्चन विच इज अराइजन. Can a marketer create the need? I am asking you, friends. Can the marketer create a need? यहाँ पे मैंने जो 3 नीड्स बोले हैं, फिजिकल, सोशल एंड इंडिविजुअल, ये 3 नीड्स तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन मेकअप में आ जाता है. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट. बट एज अ मार्केटर, if you are a marketer, and can you create the need? Someone will say yes, someone will say no. I will say yes.
द मार्केटर, एनी मार्केटर कैन क्रिएट द नीड, बिकॉज नीड किसका है? कस्टमर का है, राइट? कितने लोगों का है? कस्टमर्स के लोगों का है, तो उनका नीड मार्केटर क्रिएट कर सकता है. रिसेंटली बेस्ट एग्जाम्पल इज COVID-19 पेंडेमिक. हैव यू एवर इमेजिन्ड के ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मास्क का प्रमोशन होगा और मास्क बेचे जाएंगे? यस, सैनिटाइजर, मास्क, इवन दैट कोट, डॉक्टर कोट जो पहनते हैं पूरा, राइट, COVID-19 में. These all products which are the basic needs right now. सैनिटाइजर के बगैर चलता नहीं है, मास्क के बगैर चलता नहीं है. इट इज़ बेसिक नीड. किसी ने सोचा था कि रास्ते पे आप जाओगे और एक स्टोर होगा जहाँ पे सस्ते वाले भी सैनिटाइज़र बेचे जाएंगे? सैनिटाइज़र स्प्रे, एयर सैनिटाइज़र स्प्रे, these are all the creators. Another example I would like to share: mobile phones. Nowadays mobile phones are our needs. मोबाइल फ़ोन के बगैर चलता नहीं है, जैसे कि सांस लेने के बगैर चलता नहीं है, राइट? लाइकवाइज खाने के बगैर चलता नहीं, मोबाइल फ़ोन के बगैर चलता नहीं है. बिकॉज एंड वन मोर थिंग एडिंग दैट, इंटरनेट शुड बी देयर. मोबाइल फ़ोन इज़ द बॉडी एंड इंटरनेट इज़ अ सोल, समथिंग लाइक दैट. तो इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री, और यू कैन से. तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट चाहिए ही, वाईफाई चाहिए ही. दीज आर द नीड्स एंड द मार्केटर्स हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड द नीड्स. मोबाइल फ़ोन में कौन से फीचर्स चाहिए? तो ये नीड्स कहाँ से आती है? कस्टमर्स की नीड को पहचानना है. एज अ मार्केटर आपको पहचानना है. COVID-19 पेंडेमिक में मैंने तो कतई नहीं सोचा था कि लोग फैशनेबल मास्क भी प्रोड्यूस करेंगे. एंड शोरूम जो है, वहाँ पे बाहर स्टैचू को जो सैम्पल क्लोथ्स पहनाए गए थे, उसमें जो उसने पहना था उसके मैचिंग में उसका मास्क था. एक इमेज था चनिया चोरी या फिर साड़ी के मैचिंग में आपका मास्क होगा. दिस इज ऑल्सो नीड एंड मार्केटर्स क्रिएटेड, राइट? सो ये जो नीड है, फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स और इंडिविजुअल नीड्स बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन पार्ट है. उसके अलावा जितनी भी नीड्स है वो मार्केटर्स क्रिएट कर सकते हैं. यस, राइट. आगे हम जाते हैं. Another is wants. The form of human needs take as they shaped by culture and individual personality. Wants are shaped by one's society and are described in terms of objects that will satisfy the needs. तो ये जो want होती है, that is a part of needs, you can say. लेकिन नीड्स का थोड़ा ब्रॉड उसका स्वरूप बोल सकते हो आप. बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ. नीड्स में मैं एक लेती हूँ कि फूड, हंगरनेस इज़ अवर नीड. भूख सबको लगती है ना? ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो या फिर इवन प्लांट्स को भी भूख लगती है. उनको केमिकल्स चाहिए या फिर ऑर्गेनिक्स चाहिए या फिर पानी चाहिए या फिर धूप चाहिए. तो हमें भी भूख लगती है. फूड इज़ अवर नीड, खाना चाहिए. बट उसके आगे का लेवल है वांट. तो ये जो वांट है वो फूड अलग अलग होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे कोलकाता नीड्स फूड बट द वांट्स आर डिफरेंट. वांट इज़ अ बाउल ऑफ राइस एंड फिश, है ना, वहाँ का खाना. या फिर आगे का मान लो कि
यूएसए में लोगों को बर्गर पिज़्ज़ा चाहिए, यूएसए में भी लोगों को भूख लगती है, लेकिन लोगों को बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता एवाकाडो ब्रोकोली वो सब चाहिए। गुजरात में आओ तो खमण ढोकड़ा पास्ता ऊंधिયું जलेबी फाफड़ा समथिंग लाइक दैट। तो फूड में आगे वांट देखते हैं। साउथ इंडिया में इडली सांभर डोसा, तो अगर गुजरात में आके आप बोलोगे कि इडली सांभर डोसा इज आवर फूड, तो साउथ इंडियंस विल से नो, इट इज़ रॉन्ग, राइट। कश्मीरी खाना इज़ डिफरेंट, पंजाबी खाना इज़ डिफरेंट, राइट। मध्य प्रदेश का खाना इज़ डिफरेंट अगेन। तो फूड की कैटेगरी जो है वो फूड को जो सोसाइटी जो कल्चर उसको डिस्क्राइब करती है वो होता है वांट। और ये वांट हर एक ह्यूमन बीइंग का नीड्स सेटिस्फाई करता है। इज इट क्लियर? सो नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, वो हो गया क्लियर। वैसे ही मैंने यहाँ पे फूड का नीड का एग्जांपल लिया, वैसे ही इफ़ यू आर टेकिंग क्लोथिंग एज अ नीड, तो जैसा देश वैसा फेस है भाई, बरोबर। क्लोथिंग है वो नीड है सबकी, लेकिन अगर आप इंडिया में जाओ तो साड़ी ड्रेस या फिर कॉमन वेस्टर्न कैजुअल भी चलेगा। फॉरेन में जाओ स्वेटर तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा जैकेट भी चाहिए, जीन्स के पैंट चाहिए, ठंड बहुत है इसीलिए। पंजाब में जाओ ड्रेस चलता है, पंजाबी ड्रेस, है ना। साड़ी में भी गुजराती साड़ी इज़ डिफरेंट एंड दक्षिणी साड़ी इज़ डिफरेंट। सो दैट इज़ अगेन द वांट, है ना। गुजरात में लोग ज़्यादातर लुंगी धोतियू, पहले के ज़माने के लोग धोतियू पहनते थे। साउथ इंडिया में जाओ लोग लुंगी पहनते हैं। अगेन द वांट इज़ डिफरेंट। क्लियर? आगे जाते हैं। दैट इज़ अ डिमांड। उसका डेफिनेशन है ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर दैट बिकम डिमांड्स। तो जो भी ह्यूमन वांट है उसको बाइंग पावर लग जाता है तो वो डिमांड बन जाता है। गिवन देयर वांट्स एंड रिसोर्सेज पीपल डिमांड प्रोडक्ट्स with benefits that add up to the most value and satisfaction to the customer, है ना। तो वो हो गया आपका डिमांड। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एट साउथ वेस्ट एयरलाइंस ऑल सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैंडल बैग्स, चेक इन पैसेंजर्स एंड सर्व एज फ्लाइट अटेंडेंट्स वंस एवरी क्वार्टर। दूसरा एक एग्जाम्पल है PNG। द एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द CEO डाउन routinely spend time with consumers in their homes and other settings. And the tagline is, we all go out and really spend time with the consumers. Right? So this is again the part of global marketing. ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट यू कैन से कोर कस्टमर कॉन्सेप्ट, नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स। आगे हम जाते हैं। सेकंड इज मार्केट ऑफरिंग्स। अभी मार्केट ऑफरिंग में हम क्या क्या ले सकेंगे, तो प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे मार्केट ऑफरिंग क्या है वो देखते हैं। दैट इज द सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट इज मार्केट ऑफरिंग्स, है ना। नीड्स वांट सेटिस्फाई करने के लिए। मार्केट ऑफरिंग्स आर नॉट लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स, दे ऑल्सो इंक्लूड द सर्विसेज। तो यहाँ पे सर्विस जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट जो है वो इट इज़ टेंजिबल, इट इज़ टचेबल, यू कैन वॉच एंड सी इट। जबकि सर्विस जो है, सर्विस इज़ इंटेंजिबल, इट इज़ नॉट टचेबल, अदृश्य है। सर्विस अदृश्य है, वो आपको दिखाई नहीं देती, बट यू कैन फील द सर्विस, है ना।
प्रोडक्ट आप उसको कंज्यूम करते हो, सर्विस को आप फील करते हो, आप एंजॉय करते हो। लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस ये दोनों के कॉम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं, ऐसा है कोई एग्जाम्पल? तो वो है अ रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ द फूड प्रोडक्ट यू आर ऑर्डरिंग। आपने जो भी खाना ऑर्डर किया है वो आपका प्रोडक्ट हुआ, जो आप कंज्यूम कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन साथ में आप उसका सर्विस भी ले रहे हो, है ना। होटल रेस्टोरेंट में जाकर आप सर्विस टैक्स क्यों भरते हो? बिकॉज यू आर फीलिंग, यू आर एंजॉइंग द सर्विस एंड यू आर पेइंग फॉर द सेम। तो जो सर्विस है वो क्या है? तो वो रेस्टोरेंट का एम्बियंसिस, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ पे वेटर आके आपको प्लेट सर्व करता है, प्लेट ले जाता है, मैनेजर आके आपका ऑर्डर लेता है, बिल पेमेंट के लिए आता है, राइट। सो दैट इज़ द सर्विस विच कैन नॉट बी सीन। सो ये हुआ प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक्सपीरियंस जो मैंने बोला, वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, whether it is good or bad, experience for the product or the service. If you are not satisfied with the service, so it is a bad experience. If you are very highly satisfied with your service or product, then it is a good experience, right? More broadly, market offerings also include other entities such as persons, places, organizations, information and ideas, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो है, एक तो सर्विस सेक्टर्स लिए है, बैंकिंग है, एयर ट्रैवल है, होटल स्टेज, टैक्स प्रिपरेशन, टूरिज्म एक्सेट्रा। इन द केस ऑफ टूरिज्म और यू कैन से डेस्टिनेशन मार्केटिंग, द मार्केट ऑफरिंग इज एन एंटायर ट्रैवल एक्सपीरियंस। कोई भी कंज्यूमर का पूरा एंटायर ट्रैवल एक्सपीरियंस उसमें आ जाता है। से फॉर एग्जाम्पल केरला टूरिज़्म, राइट। तो वहाँ पे केरला टूरिज़्म का मार्केटिंग क्या है? तो सबसे पहले तो साउथ इंडियन स्टेट, दे आर नोन एज नोन फॉर द बैकवाटर्स, लश ग्रीन प्लांटेशंस, राइट, पॉल्यूशन फ्री एयर, राइट, वेरी गुड एंड क्लीन बीचेस। तो ये सब उनकी खासियत है। तो उसको एक टैगलाइन दिया गया है, गॉड्स ओन कंट्री, राइट। वैसे ही गुजरात के टूरिज़्म में बच्चन साहब ने अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया है, खुशबू गुजरात की, दैट इज़ द टैगलाइन। अनदर टैगलाइन इज़ कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, राइट। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टूरिज़्म और डेस्टिनेशन मार्केटिंग। वैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है दो बूंद जिंदगी के, पोलियो का एक हेड। तो वो एक आइडिया है, मार्केट ऑफरिंग का आइडिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स फॉर द मार्केट ऑफरिंग्स। आगे आई वुड लाइक टू शेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया। अभी ये मायोपिया क्या है? इन द वेरी सिंपल टर्म, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मायोपिया इज़ अ लैक ऑफ फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट। आगे का विजन देखने की आप में ताकत नहीं है, दैट इज़ द लैकिंग, ठीक है। विजन आपको क्लियर नहीं दिखाई देता तो वो आपका मायोपिया है। उसके लिए आपको चश्मा पहनना पड़ता है और चश्मे में से आपको उतना ही दिखता है, सामने का आजू बाजू का फ्रेम की वजह से नहीं दिखता। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मिस्टर लेविट इन द 1960s इन द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मैगजीन, ठीक है। उसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। मार्केटिंग मायोपिया इज द mistake of paying more attention to the specific products a company offers than to the benefits and experiences produced by these products.
कंपनी यहाँ पे कोई भी XYZ कंपनी यहाँ पे एक सबसे बड़ी भूल करती है कि उसको उसकी ही प्रोडक्ट दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है, एक चश्मा है, चश्मे के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स हैं पीछे खड़े हुए और उसके आगे माई प्रोडक्ट, वो कंपनी को उसकी ही प्रोडक्ट दिखाई देती है, राइट। तो वो उसकी भूल है कि दे आर पेइंग द अटेंशन टू दिस लिमिटेड प्रोडक्ट्स ओनली। मैंने एक एग्जांपल लिया है मार्केटिंग मायोपिया में, कोडाक फिल्म, ठीक है, दैट वाज द बिगेस्ट फेलर एट दैट टाइम। Kodak Film Company is a great example in which marketing myopia was present. Kodak did not view Sony, an electronics company, as a potential competitor. वैसे तो अभी कैमरा इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, सोनी, कैनन, निकॉन, राइट, फ्यूजी फिल्म, बहुत सारी है। लेकिन कोडाक जब हाईएस्ट पिक पे चल रहा था तो कोडाक का यहाँ पे मार्केटिंग मायोपिया हो गया, उसका एक मिस्टेक हो गया कि उसको कोडाक के अलावा दूसरी कोई कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं देते थे, और अगर वो दिखाई देते थे तो वो उसको ठीक है, दे आर ओनली द कॉम्पिटिटर, लेकिन उनको डिटेल रिसर्च नहीं किया उन्होंने, तो वो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। एंड दैट इज़ वाई दैट प्रोडक्ट वॉज अ फेलर। इतने सक्सेसफुल कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो फेल क्यों जाती है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। सो हियर अगेन आई एम शेयरिंग द पिक्चर कि भाई कोडाक ने ऐसे ही चश्मे में से अपनी ही प्रोडक्ट दिखी थी, चश्मा निकालना पड़ता है। अगर चश्मे के ऊपर धूल चढ़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में भी धूल है, राइट। चश्मा निकालो, चश्मा साफ करो और चश्मे के बगैर देखो। हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन, आई मीन टू से हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन। चश्मा निकालना पड़ता है, दैट इज़ द मार्केटिंग मायोपिया। तो यू शुड रिमूव दिस मायोपिया, ठीक है। ऑल राइट, आफ्टर डिस्कसिंग द मार्केट ऑफरिंग्स we will be discussing third one, that is the value and satisfaction. Marketers must be careful to set the right level of expectations. कोई भी कस्टमर है उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर, सो दे आर फोकसिंग ऑन दी कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कोई भी मार्केटर्स है, बिकॉज by fulfilling that maybe customers are satisfied or customers are not satisfied. Here, as per Philip Kotler, we have taken that if they set expectations too low, they may satisfy those who buy but fail to attract enough buyers. And if they raise expectations too high, buyers will be disappointed. So here our main motto is to satisfy the customers. Customers का सबसे पहले तो वैल्यू करना है। वैल्यू करते ही अगर आप वैल्यू करते हो तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आराम से कि ओके भाई, if you have any complaint regarding a product and if you have registered a grievances for the product इन दी कस्टमर केयर, और वहाँ से अगर प्रॉम्प्ट रिप्लाई आ जाता है आपका ग्रीवेंसेस के लिए, तो यू एज अ कस्टमर यू विल बी सेटिस्फाइड विद देयर आंसर। और उसके बाद कोई भी कंपनी फीडबैक लेती है वेदर यू आर सेटिस्फाइड विथ अवर आंसर और नॉट। गूगल जैसे गूगल भी पूछता है कि मैंने जो आपको हेल्प किया उसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है ना। आप जीपीएस मैप ऑन कर देते हो, तो ये जीपीएस मैप जो ऑन किया, इफ़ यू हैव रीच्ड टू दैट डेस्टिनेशन, तो वो डेस्टिनेशन पे रीच होने के बाद, आफ्टर रीचिंग दैट डेस्टिनेशन, गूगल विल आस्क यू वेदर दिस गूगल मैप or the destination route helped you or not, and you will have the rating sites, that is the highly satisfied, not satisfied, highly dissatisfied, etc. So as a customer, the marketer should value them and automatically they will be satisfied.
So customer value and customer satisfaction are key building blocks for developing and managing customer relationships. तो ये जो है वो उसका कोई भी कस्टमर सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने का ये बेस है. પાયો જેટલો મજબૂત એટલું બિલ્ડિંગ તમારું મજબૂત. સો વેલ્યુ એન્ડ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ ધ કસ્ટમર શુડ બી વેરી મચ સ્ટ્રોંગ so that the customer relationship would be more easier to manage. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग नंबर 4 इज जो है वो है एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप्स. एक्सचेंज क्या है? सो द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न. जिससे मैं बोल रही हूँ marketing occurs when people decide to satisfy needs and wants through exchange relationships. तो एक्सचेंज में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए इन रिटर्न यू आर ऑफरिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कैंडिडेट, they want votes. An orchestra, they want audience. Social action group, they want idea acceptance. So in return they will be finding something, right? लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि अ बैगर है ना, अ बैगर इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस, राइट? बैगर क्या करता है? ही इज़ बैगिंग, और साथ में उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है और समथिंग. लेकिन उसके सामने पैसा मिलता है, भिखारी को, बैगर को पैसा मिलता है बैगिंग का, लेकिन उसके सामने ऑफरिंग में सामने क्या मिलता है उसको? सामने वाले को क्या मिलता है? दुआ मिलती है, ऊपर वाला तेरा भला करेगा, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. ओके, बट हियर जैसे मैंने बोला, कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ऑर्केस्ट्रा को ऑडियंस चाहिए, सोशल एक्शन ग्रुप को एक्सेप्टेंस चाहिए, आइडिया एक्सेप्टेंस. सो दिस आर द पार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस. अनदर इज रिलेशनशिप्स. मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्शंस taken to build and maintain desirable exchange relationships with target audience involving product, service, idea or other objectives. Is it clear? All right. Last concept, core customer marketplace concept, fifth one is markets. What is market? So market is the set of all actual and potential buyers and customers of a product or service. Potential होने चाहिए, buyers actual होने चाहिए, real होने चाहिए. So these buyers share a particular need or want that can be satisfied through exchange relationships. ठीक है? So this is what markets is all about. Sorry. Next is the model or the figure of modern marketing system. यहाँ पे हमने मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम का एक इमेज लिया है मैंने फिलिप कॉटलर में से. तो व्हाट इज दिस फिगर ऑल अबाउट? तो इट शोज द मेन एलिमेंट्स इन अ मार्केटिंग सिस्टम. मार्केटिंग इन्वॉल्व्स सर्विंग ए मार्केट ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स. फाइनल कंज्यूमर बोलो या फिर एंड कंज्यूमर बोलो, जिसके साथ जिसको प्रोडक्ट्स पहुंचता है वो फाइनल कंज्यूमर. इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, the company and the competitors research the market and interact with consumers, right? जो भी कंपनी है उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट को रिसर्च करता है और कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन में उतरते हैं टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स नीड्स. जब तक वो लोग रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक वो लोग कंज्यूमर्स और मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक मार्केटर्स विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई
and understand the needs of the consumer. Then the marketer create and send their market offerings and messages to consumers, either directly or through marketing intermediaries, राइट. इंटरमीडियरीज जो भी उसके माध्यम है उसके हिसाब से. एंड ऑल ऑफ द पार्टीज in the system are affected by major environmental forces. Like environmental forces कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? तो डेमोग्राफिक में नेम, एज, जेंडर वो सब आएगा. इकोनॉमिक, कंट्री का इकोनॉमी क्या है, स्टेट का इकोनॉमी क्या है. फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. तो एनवायरमेंटल फोर्सेस बोलो, फैक्टर्स बोलो, सेम है. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इमेज में, सप्लायर है, वो रॉ मटेरियल सेल करता है, तो वो कंपनी को भी बेचता है, कॉम्पिटिटर्स को भी बेचते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, राइट, जो माध्यम होते हैं उसके हेल्प से दे आर रीचिंग टू द कंज्यूमर्स. एंड द मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस जो कि मैंने बोले हैं, मैक्रो एनवायरमेंट्स, बिजनेस के एनवायरमेंट, वो सप्लायर से कंज्यूमर तक सभी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. सो मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी. वॉलमार्ट कैन नॉट फुलफिल इट्स प्रॉमिस of low prices unless its suppliers provide merchandise at low cost. जब तक वॉलमार्ट का जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो रिटेल में बेचते हैं मर्केंडाइज, वो अगर लो कॉस्ट में सप्लायर्स नहीं देंगे तो वॉलमार्ट का जो टैगलाइन है लो कॉस्ट में बेचने का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. And if it is not fulfilled, then consumers will not be satisfied. One more thing, company Ford, it cannot deliver high quality to car buyers unless it is dealers provide outstanding sales and services. तो जब तक डीलर्स, सप्लायर्स, ये सारे लोग सपोर्ट में नहीं है, तब तक द कंपनी एंड द कॉम्पिटिटर्स, दे आर not, you can say they are helpless, right? And if they are not having the marketing intermediaries, if they are not using these products well, तो end consumer तक वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे. So this is the figure of a modern marketing system. I hope you all get it. In the next session we will be discussing the second step of marketing process, that is design a customer driven marketing strategy. That would be discussed in the next session. All right, till then, thank you so much.